Students, I am back with a new video of Make Physics Easier by Mayur Agarwal. So, today we are going to start the next topic, work, energy and power. So, without any delay, first of all I want to request you that if you have not subscribed my channel, then subscribe this, okay, for your benefit only. Like करिए मेरे वीडियोस को, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिए. I hope so you will do definitely that. Okay. So without any wastage, we are going to start work, energy and power. सबसे पहले हम लोगों को ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं पॉइंट वाइज आपको इस पे बताऊंगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है. सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्क. व्हाट इज वर्क? सो वर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन डायरेक्शन. आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो और उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में ही आगे की ओर डिस्प्लेस होता है, देन इट इज सेड दैट वर्क हैज टू बी डन. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क. एंड द नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मूला फॉर वर्क. जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, फोर्स के लिए, वर्क के लिए दो क्वांटिटीज डिपेंडेंट कर रही हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो फॉर्मूला फॉर वर्क विल बी W is equal to F into S. F for magnitude of force and S will be the displacement of the object in the direction of force. Okay, now we can say that work is a scalar quantity. Why is it so? Because according to the definition of a scalar quantity, direction is not needed. In the same way, work को explain करने के लिए किसी तरह की direction की जरूरत नहीं होती है. That is why work is a scalar quantity. Okay, this formula you have studied in previous classes also, but in this class, in class 10th, you have to read a more new formula for the work, which is W is equal to F into S into cos theta. F and S, these quantities you know. What is theta? Sometimes it happens that you are applying the force on the object at some angle. Like this is the object, okay, and you are applying the force like this. So you are making some angle with the force. There is some angle between the force applied and the displacement of the object. फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो जिस डायरेक्शन में, वो और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, उनके बीच में कुछ एंगल बनता है थीटा. देन वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर वर्क इज F into S into cos theta. So this is the another formula. Okay, so basically work is the, अगर हम वर्क को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन करें, so we can say that work is the product of force applied and the displacement produced in the object due to the direction of force, due to the force in its own direction. Work is the product of magnitude of force and the displacement in the direction of force. That is the definition of work. Unit, अगला हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ वर्क. SI यूनिट, वर्क की SI यूनिट होती है बेटा जूल. SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. And the another CGS unit of work is erg. जो CGS unit होती है वर्क की, that is erg. Okay, ERG. SI unit of work is joule and CGS unit of work is erg. और इन दोनों में जो रिलेशन होता है, 10 to the power 7 erg is equal to 1 joule. 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. और अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, आप देख सकते हो सामने. आप सबसे पहले अगर आप 1 जूल को ब्रेक करिए तो आप 1 जूल को लिख सकते हो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल टू F इंटू S था. तो F की यूनिट क्या है? न्यूटन. S की यूनिट है मीटर. न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 टू द पावर 5 डाइन. और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 टू द पावर 2. कंबाइन करेंगे 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर. इट विल बिकम 10 टू द पावर 7 अर्ग. 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. This is the relationship between SI and CGS unit of work. Now, अगर आपसे पूछ लिया जाए how can you define 1 joule, जैसा कि हमारा अगला टॉपिक है 1 joule की डेफिनेशन देना और 1 erg की. So 1 joule के लिए हमें वर्क का फॉर्मूला कंसीडर करना पड़ेगा. W is equal to F by S. अगर हम यहाँ पर 1 जूल आंसर चाहते हैं तो यहाँ 1 न्यूटन रखना होगा और यहाँ क्या रखना होगा? 1 मीटर. तो अब इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें और उस ऑब्जेक्ट में
1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वहां पर वर्क डन कितना होता है? 1 जूल. Okay, when 1 Newton of force displaces an object by 1 meter in the direction of force, then the work done is 1 joule. और अगर हम बात करें 1 अर्ग की, तो न्यूटन की जगह हमें क्या रखना होगा? डाइन. और मीटर की जगह क्या रखना होगा? सेंटीमीटर. तो जो हमने 1 जूल की डेफिनेशन दी है उसमें से 2 वर्ड्स चेंज हो जाएंगे. न्यूटन को रिप्लेस कर दिया जाएगा डाइन से और मीटर को रिप्लेस कर दिया जाएगा सेंटीमीटर से. सो वी कैन से दैट when 1 dyne of force displaces an object by 1 centimeter in its own direction, then the work done is 1 erg. So these are the definitions of 1 joule and 1 erg. तो किसी भी फिजिकल यूनिट की अगर आपको डेफिनेशन बनानी है तो उसका बेसिक फॉर्मूला आप ले लोगे, जितनी भी उसमें क्वांटिटीज दिख रही हैं उन सभी को यूनिट रख दोगे, मतलब 1 की टर्म्स में रख दोगे और आप उस क्वांटिटी की यूनिट की डेफिनेशन बना सकते हो. द नेक्स्ट थिंग इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. अभी तक बेटा जिस वर्क की हम बात कर रहे थे दैट इज हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ वर्क, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तभी कहा जाता है जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली अपनी पोजीशन चेंज करे. अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, एक कुली है, कुली बहुत सारा लोड जमीन से उठाकर अपने सर तक लाता है. यहां पर अगर हम देखें तो वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, जिस पोजीशन पर वो खड़ा था उसी पोजीशन पर वेट था, उसने सिर्फ उसे उठाकर अपने सर पे रखा है. तो इस कंडीशन में क्या कहा जाएगा? किसी भी तरह का वर्क नहीं है. नहीं बेटा, वर्क होगा, लेकिन यहां पर कौन सा वर्क होगा? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. तो जिस तरह हम फॉर्मूला बनाते हैं W इज इक्वल टू FS, ये तो हॉरिजॉन्टल वर्क का फॉर्मूला है, इसी से फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का. कैसे? वो देखिए, अभी अभी मैंने बताया F का मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट जिसे उठाया जा रहा है, और F को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया W से. W की जगह आप पूरा लिख देते हैं वेट, और इनटू, क्योंकि यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क हो रहा है तो इसलिए यहां S जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा किससे? हाइट से. ना फॉर्मूला फॉर वेट इज mg और हाइट फॉर्मूला h. सो द फाइनली द आंसर इज W is equal to mgh. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. तो अब किसी तरह का आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए. अगर देखिए कुली वेट उठा के अपने सर तक ला रहा है तब वो ये वाला वर्क कर रहा है, तब ये हमारा W इक्वल टू FS जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला वर्क होता है दैट इज 0. लेकिन वही चीज अगर वो पर्टिकुलर कुली वो लोड लेकर, वो वेट लेकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक जा रहा है, तब फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे W इक्वल टू F इंटू S. सो दोनों चीजों में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क डन एंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टली हम लोग कंसीडर करते हैं, और जब हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बात करते हैं तब हम वर्टिकल हाइट को कंसीडर करते हैं. यस, द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू डील इज एनर्जी. What is energy? Basically, work and energy are equivalent. Energy is just a combination of so many works. Like, मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं. आपसे मैंने कहा आप एक अपनी चेयर उठाकर रूम से बाहर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक रखिए. आपने वो काम किया, तो आपने चेयर उठाई, यानी कि वहां पर आपने फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और वो पॉइंट जो था क्लास के अंदर से, उस रूम के अंदर से बाहर तक, वो डिस्टेंस थी 10 मीटर. सो 10 न्यूटन का फोर्स और 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट दोनों को सॉल्व करा के 100 जूल आंसर आ गया. यानी आपने एक बार चेयर को डिस्प्लेस करने में 100 जूल वर्क किया. फिर मैंने कहा कि दूसरी एक चेयर है उसी के पास, उसे भी यही काम करिए. फिर आपने 100 जूल वर्क किया, 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200. यही काम मैंने जब आपसे रिपीट कराया तो 10 बार आपने कर दिया ये काम. उसके बाद आप क्या बोलोगे? सर अब मेरी एनर्जी खत्म हो गई है. यही तो स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में. सो दैट इज कॉल्ड एनर्जी. इसका मतलब क्लियर है, आपकी बॉडी में 100 जूल का 10 कॉम्बिनेशंस स्टोर था. 100 जूल के 10 बार को काम करने का आपके पास एनर्जी स्टोर थी. दैट इज कॉल्ड एनर्जी. इसीलिए एनर्जी की सिंपलेस्ट डेफिनेशन कैपेसिटी टू डू वर्क. कितना वर्क कोई भी पर्सन, कोई भी मशीन कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी. कैपेसिटी टू डू वर्क. और एनर्जी क्योंकि वर्क के ही इक्विवेलेंट है तो इसलिए यूनिट्स में कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन हमारे पास फिजिक्स की बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, तो अलग अलग ब्रांचेस में फॉर द कन्वीनियंस हम लोग अलग अलग यूनिट यूज करते हैं. जैसे अगर हम लोग बात करें हीट एनर्जी की, सो हीट एनर्जी के केस में इट मींस कैलोरीमेट्री में हम लोग यूज करते हैं कैलोरी. सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. ये हीट एनर्जी के केस में होता है. अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में,
जिसमें हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में kWh यूनिट यूज होती है। 1 किलोवाट आवर, इसका रिलेशन होता है जूल के साथ 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगर हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी और वी कैन से एटॉमिक एनर्जी, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, सो दीज न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट यूज होती है। तो इसमें ये रिलेशन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो ये कुछ अलग अलग फिजिक्स की ब्रांचेस है जहां पर हम लोग एसआई छोड़कर कन्वीनियंस के लिए ये सारे यूनिट्स यूज करते हैं।